Okay, welcome friends to my YouTube channel Gate Diary. So in previous class actually we studied up to the voltage regulation and different types of voltage regulation, and what about last was voltage regulation minimum equal to minus x per unit, where x is the leakage reactance, it should be minimum. Okay, so voltage regulation minimum equal to minus x per unit. X per unit means leakage reactance of the transformer in per unit, it should be minimum. Okay, so the thing is how to minimize the x per unit. Okay, you know there are several methods to minimize the x per unit in different types of transformer construction. For example, core type and shell type. Later I will explain about the core type and shell type transformer. Okay, so next is how to reduce x per unit. Voltage regulation is a figure of merit of transformer and its low value is desired. Okay, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर ये किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू द पर यूनिट इम्पीडेंस Z per unit. Okay, and therefore voltage regulation may be reduced by reducing the Z per unit. Okay, यहाँ पे आपने देखा होगा इधर इधर Z per unit maximum equal to it is equal to मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन. ठीक है, तो यहीं पर मैंने कराया आपको. हाँ, दिस इज द फेजर डायग्राम एंड कंडीशन इज phi equal to theta equivalent. Okay, this is the maximum voltage regulation equal to Z per unit and corresponding PF cos phi equal to cos theta equivalent, and here voltage regulation maximum equal to Z per unit. Okay, this is the final formula at maximum regulation. So you know Z per unit आप कैसे लिख सकते हैं? Z per unit equal to R per unit plus JX per unit. Okay, Z per unit can be reduced by reducing the R per unit or X per unit. Okay, Z per unit लिखा यहाँ पर R per unit plus JX per unit. Okay, and Z per unit can be reduced either by reducing the R per unit or X per unit. Okay, you can reduce the Z per unit. You know R per unit, basically R, this is the winding resistance. You can say either primary side or secondary side. R per unit is winding resistance, so it already kept at low optimum value because of एफिशिएंसी कंसिडरेशन, क्योंकि इस आप एक वैल्यू से कम भी रेजिस्टेंस नहीं रख सकते, अदरवाइज आपका करंट इंक्रीज हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू द करंट रेटिंग आप अपना आर पर यूनिट कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, तो ये ऑलरेडी कैप्ड एट लो ऑप्टिमम वैल्यू. ओके, सो नेक्स्ट दिस लीड्स टू एक्स पर यूनिट टू बी रिड्यूस्ड और डिक्रीजिंग द वोल्टेज रेगुलेशन. तो आपका मेन फैक्टर कौन है अभी जो रिड्यूस करेगा Z per unit को, और यू कैन से reduce the voltage regulation? Main factor is X per unit. Okay, X per unit can be reduced by reducing the leakage flux, because you know leakage flux equal to phi L क्या है आपका? Leakage flux. Okay, and this leakage flux you can define inductance L equal to lambda by I, lambda here flux linkage, and you can write N phi, and this phi is phi L, leakage flux, by I. So when you will reduce the leakage flux, your inductance will be less. Inductance is less, that means this X per unit will be less. Okay, so directly you can say by reducing the leakage flux you can reduce your X per unit.
Leakage flux can be reduced by keeping the two winding close as possible in core type transformer. Okay, it is done by using concentric cylindrical type. हाँ, यहाँ पर मैंने दिखाया आपको basically there are two types of transformer in construction: core type, number 2 shell type transformer. ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कोर टाइप. कोर टाइप में क्या है, एक कोर है और इस पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग है आपका. ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और दिस वन इज द सेकेंडरी वाइंडिंग. दिस कोर which is carrying the common flux. Okay, in shell type transformer basically जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है वो एक ही लिंब पे है. नीचे पहले आपने प्राइमरी की, उसके ऊपर आपने सेकेंडरी वाली वाइंडिंग की हुई है. ठीक है, और ये है आपका शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर. ओके, नेक्स्ट in shell type transformer physical proximity is achieved by sandwich winding or also called pancake winding or interleave winding. Okay, but in core type basically by keeping the two winding close as possible in core type, it is done by using the concentric cylindrical winding in core type transformer. Later I will explain actually this core type, so be patient. I will explain this core type also. So this is basically window to height ratio. In core type transformer leakage flux may be reduced by increasing the विंडो हाइट टू विड्थ रेशो. ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा आपको. अभी पॉइंट्स जो है इम्पोर्टेंट ये आप रखो, बाद में मैं आपको अभी करने वाला हूँ एक्सप्लेन कि जो हाइट है इसको बढ़ाने से कैसे आपका रिड्यूस हो जाएगा लीकेज फ्लक्स कोर टाइप ट्रांसफार्मर. ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड शेल टाइप. शेल टाइप में क्या है आपका कॉमन लिंब है, इसी पे यहीं पे आपने पहले प्राइमरी की हुई है एंड फिर देन सेकेंडरी. हाँ, ये है आपका शेल टाइप ट्रांसफार्मर. इसमें पहले एलवी की, उसके बाद एचवी, फिर एलवी, फिर एचवी. ठीक है, एक लिंब पर, अनदर लिंब पर भी आपने ऐसे ही किया. ओके, दिस इज कॉल्ड सैंडविच वाइंडिंग इन ट्रांसफार्मर. ओके, हाँ, दिस इज द अनदर डायग्राम. हियर इट इज शॉन शेल टाइप ट्रांसफार्मर. जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेल टाइप में क्या है, हियर देयर आर टू कोर्स. ओके, कोर 1, कोर 2. कॉमन लिंब पे हमने पहले एलवी वाइंड किया, एलवी को रैप किया. ओके, देन एचवी को रैप किया मैंने, देन एलवी. ओके, और जो आपका कोर 1 है ये कैरी करेगी आपका हाफ फ्लक्स 5/2 और जो अनदर कोर है इट विल कैरी हाफ फ्लक्स 5/2. ओके, 5/2 एंड 5/2. ओके, सो हाँ, दिस वन इज आल्सो शेल टाइप ट्रांसफार्मर. ये आपने देखा होगा जो स्टूडेंट करते हैं, जो मेजर प्रोजेक्ट करते हैं उसमें वहाँ पे यूज़ करते हैं बेसिकली रेक्टिफायर एज ए रेक्टिफायर. और ये यूज़ करते हैं हम एम्पलीफायर में भी आपने देखा होगा. और इसको लिखते हैं 909 भी इसको बोलते हैं, 12 भी इसको कहते हैं. इसके ऊपर लिखा हुआ भी है बेसिकली 230 वोल्ट AC. ये है प्राइमरी, इसको कनेक्ट करेंगे सिंगल फेज 230 वोल्ट AC से. ओके, प्राइमरी साइड, इसके ऊपर लिखा भी है 230 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज. और सेकेंडरी का भी लिखा हुआ है 12 एंड 1000 मिली एम्प्स और 1 एम्पियर. ठीक है, तो ये बच्चे प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं रेक्टिफायर की तरह. पुराने टेलीविज़न में भी यूज़ होता था ये, जो हम लाते हैं ऑडियो एम्पलीफायर उसमें भी लगा होता है. तो 12 का मतलब क्या है
कि ये जो ब्लू वाला वायर है आपका और ब्लैक वाला 0, ब्लू वाले 12, 0, 12, ठीक है। तो 0 वाला है ये आपका मिड पॉइंट से निकाला, और अगर आप वोल्टेज मेजर करोगे ब्लू और 0 के बीच तो इट विल बी 12 वोल्ट RMS AC, ओके। ये AC है, स्टेप डाउन करके मिली है। और अगर आप मेजर करोगे वोल्टेज ब्लू वायर्स के बीच में तो मिलेगी 12 + 12 24 वोल्ट AC, ठीक है। तो इसमें आपको मिल जाते हैं दो वोल्टेज लेवल 12 एंड 24, इसलिए हम बीच में टेपिंग करके इसको 0 वोल्ट मिडिल से निकालते हैं। तो ये भी देखा होगा आपने, ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, इसकी बेसिकली कोर है, और इसी कोर में E एंड I टाइप की इसमें कोर होती है, जो मिडिल में ही इस पे यहीं पे प्राइमरी वाइंडिंग होती है आपकी। ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है यहाँ पर, ओके, एंड दिस इज़ योर सेकेंडरी वाइंडिंग, उसी के ऊपर सेकेंडरी की हुई होती है। तो ये वाला है आपका शेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये देखा होगा आपने, काफ़ी यूज़ में है बेसिकली। हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इसके ऊपर लिखा है 50 हर्ट्ज, 230 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज। यूज़ करते हैं इसको FM वगैरह में, ओके। पुराने टेलीविज़न में भी यूज़ करते थे, मैंने बताया अभी आपको। कुछ ऑडियो एम्पलीफायर्स वगैरह उसमें भी यूज़ करते हैं, हाई रेटिंग का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल 24 वोल्ट 5 एम्प्स। हाँ, एक आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, जो मोबाइल चार्जर के अंदर ट्रांसफार्मर्स का साइज़ तो होता है काफ़ी छोटा, साइज़ कम क्यों हो जाता है ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी 50 हर्ट्ज में आपने देखा कि साइज़ थोड़ा बड़ा है, लेकिन मोबाइल चार्जर के अंदर छोटा ट्रांसफार्मर आपने देखा, इसका साइज़ कम है बिकॉज इट इज़ ऑपरेटिंग एट किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। तो सेम रेटिंग के लिए अगर फ्रिक्वेंसी आप बढ़ा देंगे तो ट्रांसफार्मर का साइज़ हो जाता है रिड्यूस, ठीक है। क्यों हो जाता है मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा आपको। इसीलिए स्पेस में भी जो फ्रिक्वेंसी हम यूज़ करते हैं दैट इज़ 400 हर्ट्ज, ओके, इन स्पेस। क्यों? बिकॉज सेम रेटिंग का जो ट्रांसफार्मर है उसकी डायमेंशन रिड्यूस हो जाती है एट हायर फ्रिक्वेंसी कंपेयर टू द 50 हर्ट्ज, दैट्स वाई वी यूज़ 400 हर्ट्ज इन स्पेस, ओके। क्योंकि वहाँ पे आप ज़्यादा वेट लेके नहीं जा सकते। हाँ, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है टॉपिक है आपका एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। वोल्टेज रेगुलेशन भी आपका इम्पोर्टेंट था, वहाँ से भी आपका आ जाता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ से तो डेफिनेटली आपको आएगा एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। लेकिन बिफोर मूविंग टूवर्ड्स एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोर टाइप ट्रांसफार्मर के। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बेसिकली पॉइंट्स थे आपके, एक तो जो विंडो का हाइट टू विड्थ रेशो है इसको इंक्रीज कर देते हैं, और दूसरा पॉइंट था कि कोर टाइप में आप कौन सी वाइंडिंग यूज़ करते हैं, कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल वाइंडिंग। तो उसका क्या मतलब है वो भी यहाँ पे देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे कोर ड्रॉ किया पहले, उसके बाद ये मैंने HV एंड LV के लिए सिलेंडर्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं कौन सा HV और कौन सा LV है आपका। ये वाला HV, ये LV है, ओके। नेक्स्ट आपका अगेन LV एंड HV। ये लीकेज फ्लेक्स है बिकॉज ऑफ LV, ठीक है। LV में अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मानूँ तो HV में ऑब्वियसली डॉट होगा, क्योंकि अगर HV में करंट इन करेगा तो LV में करंट आउट करेगा, और ये है कॉमन फ्लेक्स, कोर में जाएगा, ओके। दिस इज म्यूचुअल फ्लेक्स और यूजफुल फ्लेक्स, जो कोर वाला फ्लेक्स है। ये मैंने बताया आपको LV में अगर क्रॉस है तो HV में डॉट होगा, ओके।
बिकॉज एक में करंट इन करेगा तो दूसरे में आउट करेगा टू सेटिस्फाई द लेंज लॉ, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है। इसको बोलते हैं HV का सिलेंडर है और ये LV का सिलेंडर है, दोनों को क्लोज प्रोक्सिमिटी में रखा जाता है। दिस इज योर कॉमन म्यूचुअल फ्लक्स इन द कोर। ओके, हाँ, नेक्स्ट ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको LV लीकेज फ्लक्स, और ये सिलेंडर है आपका HV इंसुलेटिंग सिलेंडर एंड लो वोल्टेज साइड इंसुलेटिंग सिलेंडर, दोनों को क्लोज प्रोक्सिमिटी पे रखा जाता है। म्यूचुअल फ्लक्स कोर से जा रहा है और LV का जो लीकेज फ्लक्स यहाँ पे शो किया गया है, LV में क्या है आपका क्रॉस है, बिकॉज ऑफ क्रॉस फ्लक्स का डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो HV और LV के बीच वाइंडिंग्स के बीच जो फोर्स लगेगा उसका नेचर कैसा होगा। एक्चुअली LV में क्रॉस है, HV में डॉट है। क्रॉस मीन्स जो फ्लक्स लाइन का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, डॉट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। 1 पर यूनिट फ्लक्स, 1 पर यूनिट, टोटल 2 पर यूनिट, आउटर साइड 1 पर यूनिट। ओके, सो फॉर यहाँ पे फोर्स इम्बैलेंस है, सेंटर में ज़्यादा है, बाहर की तरफ कम है, तो किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। हायर फ्लक्स डेंसिटी टू लोअर फ्लक्स डेंसिटी, तो बाहर की तरफ लगेगा तो ये कंडक्टर कैसे बिहेव करेंगे, रिपल्सिव। तो आप कह सकते हैं कि HV एंड LV में कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, रिपल्सिव फोर्स है। ओके, बट you will observe the force of attraction between HV winding. Okay, HV winding conductors experienced a force of attraction. Okay, HV में भी आपस में जो भी कंडक्टर है वो कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, अट्रैक्टिव। तो 1 मार्क्स में पूछ लेगा व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बिटवीन LV एंड HV, तो आप टिक करेंगे रिपल्सिव। पूछेगा LV के कंडक्टर्स में कौन सा होगा, तो आप टिक करेंगे कौन से वाला, अट्रैक्शन वाला। और HV में भी कौन सा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, LV में भी अट्रैक्टिव और HV में भी अट्रैक्टिव। ओके, तो ये था आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर बेसिकली। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि जो इसकी हाइट है और इसकी विड्थ है, इससे कैसे फ्लक्स लीकेज आप कम कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, एक विंडो ड्रॉ कर रहा हूँ कोर के लिए। इसमें ये है आपका विड्थ एंड दिस इज हाइट, दिस इज विड्थ एंड दिस इज हाइट। So height to width ratio you have to increase to reduce the leakage flux। ठीक है, तो ये कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं, या तो विंडो को आप जो विड्थ है इसको कम कर दो और हाइट को इंक्रीज कर दो। देयर आर 2 वेज। तो आपने विड्थ कम किया और इसकी हाइट इंक्रीज की, तो हाइट इंक्रीज करने से क्या हुआ, जो फ्लक्स लीकेज फ्लक्स का जो पाथ है, आप यहाँ पे देखेंगे लीकेज फ्लक्स का जो पाथ है ये कैसा हो गया, आपका पाथ की लेंथ बढ़ गई। ठीक है, तो लीकेज फ्लक्स वीक हो गया, क्योंकि ये लीकेज फ्लक्स कौन सा है, जो एयर से फ्लो होके आता है। ठीक है, तो जैसे ही इसकी लेंथ बढ़ी तो ये वीक हो जाता है, अगर इसकी लेंथ कम है तो स्ट्रॉन्ग रहता है। तो लीकेज फ्लक्स को आप लिख सकते हैं MMF बाय रिलेक्टेंस से, और रिलेक्टेंस का फॉर्मूला यू नो L बाई म्यू नॉट म्यू आर इंटू A, यू कैन राइट। ओके, म्यू नॉट म्यू आर A। तो अगर ये फ्लक्स जो पाथ का लेंथ बढ़ेगा तो लीकेज फ्लक्स आपका रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सिंपल कंक्लूजन ये है आपकी हाइट, इसको आप इंक्रीज करेंगे, और ये विड्थ इसको आप रिड्यूस करेंगे। ठीक है,
तो ये मैंने सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए। टू रिड्यूसिंग द एक्स पर यूनिट था, ये आपका लीकेज रिएक्टेंस कैसे रिड्यूस होगा दोनों टाइप्स में, वो मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिकली एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इजी भी है। डेफिनेटली यू विल गेट द न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस टॉपिक। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आसान जो है आपका रेगुलेशन और एफिशिएंसी ही है ट्रांसफार्मर में, जिसको समझना सबसे ज़्यादा इजी है। ठीक है, एफिशिएंसी को आप लिख सकते हैं जनरल फार्मूला आउटपुट फ्रीक्वेंसी को यू कैन एफिशिएंसी यू कैन राइट आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ओके, इनपुट पावर, और you can write output in another word, you can write output, अभी मैं पावर नहीं लिख रहा यहाँ पे। बाय इनपुट को आप क्या लिख सकते हैं, आउटपुट प्लस लॉसेस, क्योंकि इनपुट से पावर आएगी वो किधर जाएगी, आउटपुट में जाएगी, प्लस लॉस करेगी ट्रांसफार्मर में। ठीक है, लॉसेस। और भाई इसका रूप आप लिख सकते हैं इक्वल टू 1 माइनस लॉसेस बाय इनपुट। ये कैसे लिखा अभी आपको बताएंगे नीचे, ये मैंने कैसे लिखा। जैसे आपने इनपुट पावर को एक्सपेंड करके लिखा आउटपुट प्लस लॉसेस, सिमिलरली यू कैन राइट आउटपुट को क्या लिख सकते हैं आप, इनपुट माइनस लॉसेस, जो इनपुट आई माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। सिंपल, इसी को लिख सकते हैं आप 1 माइनस लॉसेस बाय इनपुट। ओके, सो ये सारे रूप है एफिशिएंसी निकालने के लिए। ठीक है, एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का कैसा होना चाहिए, इट शुड बी हाई। ओके, लॉसेस कम रहने चाहिए। एक नंबर में आपसे पूछ लेगा वो कि बताइए ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी कितना है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप किस पे टिक करेंगे, एफिशिएंसी 0 है। क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट में एफिशिएंसी आप कहाँ पे निकालेंगे ये बताइए। ओपन सर्किट टेस्ट में आपका करंट 0 है, I2 0, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपका जो V2 है 0 है। और एफिशिएंसी निकालेंगे आप लोड साइड, कंज्यूमर साइड एफिशिएंसी निकालेंगे आप, आउटपुट पर निकालेंगे, तो आउटपुट पावर आपकी 0 है क्योंकि आपने कोई पावर डिलीवरी नहीं किया, तो एफिशिएंसी कुछ है ही नहीं, 0 है एफिशिएंसी, आउटपुट 0, 0 बाई समथिंग 0। ओके, इम्पोर्टेंट पार्ट जो लॉसेस है ट्रांसफार्मर के, वेरी इंपॉर्टेंट। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। नंबर 1 फिक्स्ड लॉसेस, 2 वेरिएबल लॉसेस। इसके कई नाम हैं, किसी भी नाम से आप पहचान सकते हो इसको। वेरिएबल लॉस, इसी को आप कह सकते हैं कॉपर लॉस, दिस इज कॉपर लॉस, और इसी को आप कह सकते हैं रेजिस्टिव लॉस। ठीक है, क्योंकि वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कारण हो रहा है रेजिस्टिव लॉस। और इसी का नाम आप कह सकते हैं ओमिक लॉस। ओके, ये सब इसी के नाम हैं, कैसी पहचान लो। ठीक है, तो कॉपर लॉस, रेजिस्टिव लॉस या फिर ओमिक लॉस। फिक्स्ड लॉस के भी कई सारे नाम हैं, मैं लिख देता हूँ। आयरन लॉस इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लॉस। ओके, और ये सब क्या है, फिक्स्ड है। ये लॉस डिपेंड नहीं करते आपके ट्रांसफार्मर की आउटपुट कंडीशन पे। आउटपुट में भी 0 और ट्रांसफार्मर में भी एट नो लोड और एट फुल लोड और एट एनी लोड फिक्स लॉस कांस्टेंट है। ओके, तो इसी को बोलते हैं आयरन लॉस, कोर लॉस और मैग्नेटिक लॉस। इनका नाम डिफरेंट है बट ये लॉस फिक्स लॉस है, ये चेंज नहीं करते।
और फिक्स्ड लॉस कह सकते हैं आप, आयरन लॉस कह सकते हैं, कोर लॉस या फिर मैग्नेटिक लॉस। ओके, इजी है, थोड़ा सा समझना है आपको। मैग्नेटिक लॉस, अगेन देयर आर टू टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टेरेसिस लॉस, नंबर 2 एडी करंट लॉस। इनको आपको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से भी न्यूमेरिकल आ जाता है अभी हिस्टेरेसिस एडी करंट लॉस से। तो इनको देख लेते हैं। एडी करंट लॉस PE, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होल स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। टी और इसका यूनिट है वाट पर मीटर क्यूब। ओके, टी यहाँ पे क्या है बेसिकली, टी है थिकनेस ऑफ द लैमिनेटेड स्ट्रिप। ये कोर जो आपका बना होता है ट्रांसफार्मर का, ये एक पर्टिकुलर सिंगल मटेरियल से नहीं बनाते, इसको मल्टीपल थिन स्ट्रिप्स से मिलके बनाते हैं। इसको बाद में उनको बोल्ट से टाइट कर देते हैं सबको, ठीक है। तो टी क्या है, थिकनेस ऑफ लैमिनेटेड स्ट्रिप। ओके, ये काफ़ी में होती है। क्यों होती है अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इससे रिड्यूस होता है आपका एडी करंट लॉसेस। हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में लिखते हैं, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ बी एम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की पावर n वाट पर मीटर क्यूब। इसका दोनों का यूनिट सेम है, ठीक है। ये वॉल्यूम में जितना लॉस हो रहा है कोर के, उसको एक्सप्लेन करता है वाट पर मीटर क्यूब में। ओके, सो n यहाँ पे क्या है, दिस इज स्टेनमेंट्स कांस्टेंट। ओके, स्टेनमेंट्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू बेसिकली approximate 1.5 to 2.5 if it is given in numerical. If not given, then n equal to 2 आपको कंसिडर करना है, n equal to 2। ओके, इजी है। ये एक ट्रांसफार्मर है आपका, कोर आपको पता है ये थिन लैमिनेटेड स्ट्रिप से कंबाइन करके हम बनाते हैं, ठीक है। ये थिन स्ट्रिप्स है आपकी, इससे कंबाइन करके बना रहे हैं, बोल्ट से टाइट कर देते हैं और इसको लैमिनेटेड भी करते हैं। तो बेसिकली एडी करंट जो है आपका PE, इसके कारण जो पावर लॉस होगा, ये आपकी कोर है। ये क्यों होगा ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एडी करंट लॉस क्या है। कोर में आपको पता है कोर कैरिंग द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो ये जो फ्लक्स है ये क्या है, इट इज टाइम वेरिंग। और टाइम वेरिंग क्यों है ये भी आपको बताने वाले हैं, बिकॉज इट इज बीइंग जनरेटेड बाय द टाइम वेरिंग करंट। ये वाइंडिंग है आपकी जो सोर्स साइड कनेक्टेड है, ये करंट है, एंड दिस करंट इज बेसिकली यू नो I इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी। तो ये क्या है, टाइम वेरिंग करंट है, AC है बेसिकली अल्टरनेटिंग। तो फ्लक्स क्या होगा, MMF, ये भी टाइम वेरिंग होगा। इट इज कैसे लिख सकते हैं आप, MMF बाई रिलेक्टेंस। MMF को अगेन यू कैन राइट NI बाई R रिलेक्टेंस, एंड फाई टी इक्वल टू एन, आई को आप लिख सकते हैं आई साइन ओमेगा टी। ओके, बाई R। यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि जो फ्लक्स है कोर में, इट इज टाइम वेरिंग, it is changing with respect to the time. Okay, it is positive and negative, it is according to the change in the current, it is changing itself, so it is time varying. टाइम वेरिंग फ्लक्स कोर में है। कोर आपकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, when there is change in the magnetic flux, there will be an
इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कोयल। कोयल की जगह यहाँ पे कोर है, तो कोर में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ओके, और वो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा क्योंकि कोर एक क्लोज्ड पाथ बना रही है, तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो उसमें लॉस होगा, और उसी को आप कह रहे हैं एडी करंट लॉस। ये लॉस क्या करेगा, कोर को हीट अप करेगा। ठीक है, एडी करंट लॉस क्या करेगा, कोर को हीट अप करेगा। हीट अप क्यों करेगा, बिकॉज कोर का एक रेजिस्टेंस है, ओके, और उस रेजिस्टेंस में एक करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये लॉस होगा और हीट अप करेगा, तो आपको वही रेजिस्टेंस आपको कम करना है बेसिकली। हाँ, ये मैंने बताया जो फ्लक्स है, दिस इज बेसिकली टाइम वेरिंग फ्लक्स। Because of this time varying flux, there will be an induced EMF, okay, in the core, and core contains a closed circuit path, okay, closed path, so there will be an current which will flow through the core, and this is called eddy current, and we have to reduce this eddy current, and core contains some resistance. If we will increase the resistance, this eddy current we can reduce, okay। तो ये है इसके पीछे साइंस कि एडी करंट कम करने के लिए हमें कोर का रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, एंड यू नो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए क्या है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का, तो एरिया अगर हम कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो एरिया कम कैसे करेंगे, जो स्ट्रिप का क्रॉस सेक्शनल है उसको कम कर देंगे, जो थिकनेस है टी, जो मैंने लिखवाया टी, थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप, इसको कम कर देंगे तो आपका एरिया भी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इट विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ये एडी करंट को कम करेगा। इसलिए जो थिकनेस है ये काफ़ी कम रखेंगे, 0.35 mm की स्ट्रिप को लेके कोर बनाएंगे, ऐसी मल्टीपल स्ट्रिप्स को मिला करके। और ये जो आपकी स्ट्रिप है क्या करेंगे, लैमिनेटेड, एक लिक्विड आता है उससे आप इसको लैमिनेटेड कर देंगे, ठीक है, इससे इसका और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। यू आर लैमिनेटिंग योर स्ट्रिप टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस, ओके, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका जो कोर का मटेरियल है, ये बना होता है CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ओके। ये एक डिफरेंट टाइप का क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, विच वी यूज टू मेक द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है, सॉफ्ट आयरन जिसको बोलते हैं, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इसको यूज़ करने से जो हमारा हिस्टेरिसिस पावर लॉस है ये कम हो जाता है, टू रिड्यूस द हिस्टेरिसिस लॉस, ओके। ये कम क्यों हो जाता है ये भी अभी देखेंगे, ठीक है, सो बी कूल। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, तो जब इसमें कोई फ्लक्स के इन्फ्लुएंस में नहीं होते मैग्नेटिक डाइपोल, तो इनकी डायरेक्शन क्या होती है, इधर उधर होती है रैंडमली, कोई इधर है कोई इधर, पूरे मज़े में। लेकिन जैसे ही कोर में फ्लक्स सेटअप होता है तो फ्लक्स क्या करता है, इन पे एक फोर्स अप्लाई करता है और इनकी जो मूवमेंट है वो एक डायरेक्शन में कर देता है इनको, ठीक है। जैसे अभी फ्लक्स आया तो इनकी डायरेक्शन इधर हो गई, ठीक है। अगर फ्लक्स नहीं था कोई तो ये इधर उधर अपना कोई इधर था। अभी फ्लक्स की डायरेक्शन आपको पता है, फ्लक्स क्या है, टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ चेंज कर रही है इसकी डायरेक्शन। तो अगर इधर है तो ये सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में हो जाते हैं अलाइंड, और अगर डायरेक्शन चेंज होता है फ्लक्स का तो जो मैग्नेटिक डाइपोल है इनका अलाइनमेंट अपोजिट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स, इनका अलाइनमेंट चेंज कर रहा है। तो आप ये देखिए चेंज कैसे कर रहा है, फ्लक्स कैसे चेंज कर रहा है, फ्लक्स चेंज कर रहा है बिकॉज ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी तो फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज होने से इनका मूवमेंट जो है
वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन चेंज कर रहा है। बीएच कर्व से भी हम देख सकते हैं, दिस इज अ बीएच कर्व ऑफ द फेरोमैग्नेटिक कोर। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे इसको मैग्नेटाइज करना, तो धीरे धीरे एक डायरेक्शन में हो जाएंगे इधर से, फिर वापस आएंगे, रेजिडुअल फ्लक्स होगा कुछ, तो ये एक लूप बना लेंगे। तो लूप का एरिया इतना कम होगा उतना आपका हिस्टेरिसिस लॉस कम होगा। हिस्टेरिसिस लॉस हो रहा है बेसिकली बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। अब क्या है, जैसे एक डायरेक्शन में है ये, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हुआ, तो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन जाने में इनमें कुछ फ्रिक्शन होगा, बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन देयर विल बी सम heat will produce. Because of that heat, loss will occur inside the ferromagnetic material. इनका डायरेक्शन इधर है, फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज, इनका डायरेक्शन चेंज, तो ये डायरेक्शन चेंज करने में क्या कर रहे हैं, अंदर फ्रिक्शन कर रहे हैं। फ्रिक्शन से क्या है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो बेसिकली जो आपकी एडी करंट लॉस है और हिस्टेरिसिस लॉस है, ये कोर को हीट अप कर रहे हैं, वहीं पे आपका पावर लॉस हो रहा है। इसको आप डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर पे आप रेटेड वोल्टेज दो, रेटेड फ्रिक्वेंसी दो, वाट मीटर लगाओ, और वाट मीटर आपको क्या देगा, लॉस देगा, और वो सारा लॉस कहाँ पे जाएगा, कोर में जाएगा, ठीक है। तो कोर लॉस आप डायरेक्ट रीड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वाट मीटर विद नो लोड कंडीशन, ओके। जो ओपन सर्किट टेस्ट में हमने किया था, ओपन सर्किट टेस्ट हम इसलिए करते हैं आरएल लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। थिकनेस कम रखते हैं ताकि जो रेजिस्टेंस है वो कम रहे, तो करंट का रेजिस्टेंस इंक्रीज तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो एडी करंट लॉस मैंने बताया, हिस्टेरिसिस लॉस बताया because of magnetic dipole, eddy current because of Faraday law of electromagnetic induction. नेक्स्ट अभी एक डेरिवेशन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका फ्रॉम द आईईएस पॉइंट ऑफ व्यू। कन्वेंशनल में आपसे पूछ लेता है बेसिकली कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे आप निकालेंगे, और एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी के लिए मैं यहाँ पे जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिख देता हूँ, बीटा इक्वल टू वी आई कोस फाई बाई वी आई कोस फाई। वी आई कोस फाई क्या आपका आउटपुट पावर है बेसिकली, प्लस आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। लॉसेस मैंने अलग करके लिख दिया अभी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। कॉपर लॉस को मैंने लिखा आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट, ठीक है, टोटल कॉपर लॉस। ये है आपका टोटल लॉसेस, पी आई प्लस आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट, ओके ओके। These are the losses. Now this equation 1. Here you will observe, IES में पूछा जाता है, मैंने बताया आपको, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो एफिशिएंसी है इट इज़ द फंक्शन ऑफ लोड करंट एंड लोड पावर फैक्टर, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज तो आपका रेटेड है, ये तो वेरी करेगा नहीं, रेटेड वोल्टेज है, लेकिन जो लोड करंट है ये वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू द लोड एंड लोड पावर फैक्टर। तो एफिशिएंसी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द लोड करंट एंड पावर फैक्टर। एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा और दूसरे को आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो एज यू विश, आप आई को फिक्स कर दो, कोस फाई को वेरी कर लो, तब आप मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल सकते हो। और यू कैन वेरी द करंट और फिक्स द पावर फैक्टर, ठीक है। तो अभी मैं निकालने वाला हूँ यहाँ पे पावर फैक्टर को फिक्स करके और करंट को वेरी करके मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, वी आई कोस फाई डिवाइडेड बाई वी आई कोस फाई प्लस पी आई आयरन लॉस प्लस आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट।
इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करने वाला हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आई से, ठीक है। ये सिंपल मैं थोड़ा सा जो मैथमेटिक है इसको थोड़ा सा इजी करने वाले हैं बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद आई, ठीक है। न्यूमरेटर को आई से डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट वी cos फाई, डिनोमिनेटर को आई से डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट वी cos फाई प्लस पी आई बाई आई, it is basically v cos phi by हाँ, अगर एफिशिएंसी आपको मैक्सिमम करनी है तो आपका जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। और मैक्सिमम मिनिमा यू नो हाउ टू परफॉर्म, वी cos phi प्लस पी आई बाई आई प्लस आई आर इक्वलेंट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, नेक्स्ट important point, eta is maximum when the denominator is minimum। तो डिनोमिनेटर को बेसिकली आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हो आप, डी बाई डी टी समथिंग करते हो इक्वल टू ज़ीरो रखते हो, तो एक कंडीशन आ जाती है, मैक्सिमम मिनिमम आपने पढ़ा हुआ है। तो डी बाई वेरिएबल क्या है, डी आई, डिनोमिनेटर को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आई, वी cos फाई प्लस पी आई बाई आई, तो मेरी एफिशिएंसी हो जाएगी मैक्सिमम आई आर इक्वलेंट इक्वल टू ज़ीरो। इससे मैंने डिवाइड किया था, इससे आपका इजी हो गया एक्चुअली कैलकुलेशन। डी बाई डी आई वी cos फाई कॉन्स्टेंट है ज़ीरो, वन बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह यहाँ पे क्या है हमारा आई है, आई आर इक्वलेंट, ठीक है। So you can write I square R equivalent equal to PI, okay. So PI RN loss equal to I square R equivalent को आप क्या लिखते हो, कॉपर लॉस। तो कंडीशन क्या आई आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, when copper loss equal to the fixed loss then your efficiency will be maximum। इजी है, कितना सिंपल हो गया आपका कैलकुलेशन। दो वेरिएबल थे, आपने एक को कांस्टेंट किया, एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन आपको मिल गया, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है, इसमें आपको कंडीशन रख देंगे पी आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट को क्या रख देंगे, पी आई रख देंगे, देन यू विल गेट फाइनल आपको मिलेगा ईटा मैक्सिमम इक्वल टू वी आई cos phi divided by vi cos phi plus pi means 2pi। कॉपर लॉस को मैंने क्या लिखा, pi, तो हो गया 2pi। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। pi क्या है यहाँ पर आपका आयरन लॉस है, और मैग्नेटिक लॉस, और कोर लॉस, और फिक्स्ड लॉस, कई सारे नाम हैं इसके, ओके। So efficiency will be maximum when variable loss, copper loss must be, this is essential condition, okay, this is not necessary, it is essential, that's why I wrote must be equal to fixed loss, okay। So आप लोड भी निकाल सकते हो, किस लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, आई ईटा मैक्सिमम इक्वल टू पी आई बाई आर इक्वेलेंट अंडर रूट, ठीक है। इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, आर एच एस राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड विद वी, सो दिस इज वी आई ईटा मैक्स इक्वल टू वी पी आई बाई आर इक्वेलेंट। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, यू ऑब्जर्व वी इंटू आई ईटा मैक्स, इट इज अपेरेंट पावर एस ईटा मैक्स इक्वल टू
V Ij means at some particular load current will be Ij I am considering, and Ij whole square R equivalent. Ij से बेसिकली मैंने मल्टीप्लाई किया इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, एक को बाहर रखा एक को अंदर ले गया रूट के, तो इसको भी आप लिख सकते हो एस जे अपरेंट पावर एट पर्टिकुलर लोडिंग, पर्टिकुलर लोड जे। ओके, एक एग्जांपल करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। पी आई बाई पी कॉपर लॉस एट पर्टिकुलर जे लोडिंग। ओके, so finally you will get one nice expression Sj, or you can write apparent power at maximum efficiency equal to apparent power at a particular loading J Pi by P copper loss at particular loading J, okay, under root. So this is very nice conclusion. Okay, where Sj equal to kVA at any load J%, ठीक है, 5% लोडिंग, 10%, 20% लोडिंग, तो इस पे क्या है आपका kVA रेटिंग। एग्जाम्पल कि एट एस जे इक्वल टू फुल लोड, फुल लोड पे क्या होगा kVA रेटिंग, फुल लोड एस एफ एल, ठीक है, देन एस apparent power for maximum efficiency equal to SFL full load PI by P copper at full load। ये फॉर्मूला आपका यूज़ होगा आगे, तो प्लीज़ कीप फॉर्मूला इन योर माइंड। very important formula, as eta max apparent power at maximum efficiency equal to apparent power at full load or rated, this is rated kVA actually, so Pi by P copper at full load, okay, copper loss at full load। Okay, thank you guys, thank you class.